I think most. Nikhil, please start now. Yeah. So most of us, parents or students, there is a conflict when it comes to career decision making of a student, right? So can I have a yes or no from the participant? We can have a check that the chat is working. We'll also come to know that yes, आपने कभी ना कभी ये conflict face किया है. You might be facing right now, or you might have faced in the past. So yes, Mini is saying yes. Okay. Let's make it an interactive one. You all just have to use the comment section for replying. Okay, just hold on. Okay. I can't see the comments coming in chat. Yeah. Yes, Nitin, the comments are coming in. Yeah, got it. Students are saying yes. Yeah. Okay, good. And how many parents are there? I think this session will be incomplete if your parents are not there, are not a part of this webinar. So agar nahi hai, so you can call them and ask them to sit with you. It's many times they have told you कि come do this, do that. आज आपके पास chance है अपने parents को बुलाने का कि please come sit with us, right? And it's 11 already. We'll wait for 2 more minutes and then we'll come to the topic. All those, Vishal, you can just put a reminder again in the group that we have started. Yeah. Okay. So I hope the parents are also there. Good. So we have seen, we have got the good response where students, I don't know, students are replying or the parents are replying. But yes, one thing which is quite clear here is, okay, what happened? Yeah. Am I audible, Kriti? Yeah, you're audible. Okay. So there is a conflict. There is no doubt about it. What this webinar is all about is how to resolve it. Okay. And how we are going to navigate this webinar. So I am Nitin. I am a counselor. I'm a career counselor as well. And I also work in the area of mental health. So I'll talk about the psychological and emotional aspect of career. Okay. And then with us is Ms. Kriti Shroff. She's a college counselor and a career counselor as well, based out of Kanpur. So welcome, Kriti. And we also have Vishal sir. Vishal sir is also a career coach, psychologist, and he is based out of Bhilai, right? All three of us are working. Our purpose of conducting this webinar, let me be very clear, हमारा purpose marketing और sales नहीं है. हमारा purpose बहुत clear है कि the right information should go to the students and parents, because career decision making is one of the most important decisions in our life. I always say to my students, life is all about taking two right decisions. One is what to do in career, and the second one is किसके साथ जीवन बिताना है. ठीक, तो किसके साथ जीवन बिताना है इसका तो मैं वेबिनार नहीं ले सकता हूं, बट करियर कैसे सही चुनना है इसके ऊपर पे जरूर हम बात कर सकते हैं. And that is what we are going to do, right? So let's get into that aspect, why this conflict happened. Okay. Kriti और विशाल, आप मेरे को थोड़ी देर के लिए होस्ट से हटा दो. अच्छा. ओके. क्योंकि वो पूरा रिफ्लेक्ट होता रहता है मेरे स्क्रीन पे. Okay. So let's I want you all to respond. ये कहां से चालू होता career decision? When it all start? Can anyone give their suggestion or their responses? कब चालू होता है? कैसे चालू होता है career? Since our childhood, okay? So
I can see some replying since our childhood. Correct, Namrat? Is it Namrat? During stream selection, okay, Aditya, correct. But कैसे पता चलता? What happens? That okay, चलो यार अब career की बात करें. What happens around that? Okay, it's childhood since our career stream. You know, it all starts with one question, and that question is, बड़े होके क्या बनना है? करियर में क्या करोगे? अब तो सीरियस हो जाओ. Am I right? Yes, sir. Yes or no? Please use the comment section to give your. बड़े होके क्या बनना है, ये सवाल पूछा जाता है तब चालू होती है करियर डिसीजन मेकिंग. करेक्ट. So parents who are there, please understand, 8th and 9th is not the age to ask this question. But still we keep asking from, even nowadays we ask from a 7th grader or 8th grader or 9th grader. So when this question is asked, बच्चे के दिमाग में क्या आता है, ये समझना जरूरी है, और यहां से कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है. ओके, सो व्हाट कम्स टू द चाइल्ड माइंड, यू नो, वो अपने आसपास देखता है कि किसके जैसा बनना है और किसके जैसा नहीं बनना है. This is what happens if the students are there, right? Students, am I right here? Okay, you see, okay, my dad is working as an engineer or a lawyer. यार इनके जैसा बनना है या इनके जैसा नहीं बनना है. ठीक, ये होता है या नहीं होता है? Yes. Now from here the things start. तो आप सोचते हो इनके जैसा बनना है और किनके जैसा नहीं बनना है. नहीं बनना है थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है. बनना है वाला पार्ट थोड़ा टाइम लेता है. बट सेकेंड थिंग विच कम्स, द चाइल्ड और द स्टूडेंट लुक्स अराउंड कि मेरे आसपास कौन क्या है. तो जिस एज ग्रुप में आपके पेरेंट्स करियर बना रहे थे, लाइक मी, माय सन इज इन क्लास 12th राइट नाउ, राइट, जब हम लोग करियर बना रहे थे तो आपके पेरेंट भी सिमिलर इसी एज ग्रुप के होंगे या थोड़े से कम होंगे. तब हमारे आसपास रोल मॉडल जो होते हैं, आई कॉल इट रोल मॉडल, तो हम देखते हैं एक डॉक्टर सक्सेसफुल है, एक इंजीनियर सक्सेसफुल है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सक्सेसफुल है, एक बैंक में काम करने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है. एंड दिस इज फ्रॉम वेयर पेरेंट्स का करियर को देखने का जो पार्ट आता है, ये यहां से आया है. यस, नसरीन इज सेइंग सेकंड एस्पेक्ट जो आ जाता है वो आता है कि यार मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मेरा बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा. ठीक है, हमने पैदा किया है, करेगा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं बच्चा अपना सपना लेके भी आया है. ठीक, हम कुछ इस सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करेंगे, थ्योरी पे बात नहीं करेंगे. ठीक, तो दिस इज फ्रॉम वेयर द पेरेंट्स थॉट प्रोसेस इज कमिंग. नाउ लेट अस सी फ्रॉम द वेयर द चाइल्ड थॉट प्रोसेस इज कमिंग. The child thought process is coming from the social media, the things around. आज आप बोलेंगे अपने फादर से या पेरेंट से, आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर, एक एग्जाम्पल है. ठीक, अब वो सुबह से शाम वीडियो देख रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी जगह, तो लगेगा ना यार मैं इनके जैसा बनूं. तो आपकी रोल मॉडलिंग यहाँ से हो रही है, ये एक एग्जाम्पल है. आपके पेरेंट्स की रोल मॉडलिंग पुरानी है, तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस रोल मॉडलिंग. हैव यू अंडरस्टूड कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? बिफोर वी गेट इनटू द सॉल्यूशन एस्पेक्ट ऑफ इट, आई होप एवरीवन इज क्लियर कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है. व्हाट इज द कोर रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? लवली. वन मोर थिंग जहां से कॉन्फ्लिक्ट आता है. सो मुझे आज 22 साल हो गए काम करते हुए. And let me tell you, I am now following my passion. मैंने कॉर्पोरेट में काम किया. Very lately in life I realized कि मुझे क्या करना. मेरे शुरू के 10 साल सिर्फ पैसा कमाने में गए, because I needed that financial stability. When parent think of your career, उनका एक ही पैरामीटर होता है कि मेरा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए. उसको वो अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जो लाइफस्टाइल मैंने तुम्हें दी है
उसी पे तुम्हें रहना है, ठीक, कब तक मेरे से फंडिंग करते रहोगे. That is from where the parent think. But when the child think of his career, वो सोचता है मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है. Nowadays, a class 10th and a 12th grader is thinking कि मुझे अपना, because I talk to a lot of them and they say, सर मुझे स्टार्टअप चालू करना है. अभी जिसके पेरेंट का सपना था कि मेरा बिजनेस होगा, बट वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाए, और उनका 12th का बेटा अगर बोलेगा या बेटी बोलेगी कि मुझे बिजनेस करना है, एक्सेप्ट करेगा क्या पेरेंट? बताइए. राइट. आपका बेटा बोलता है, बच्चा बोलता है, सर मुझे ट्रैवल करना है, मुझे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, मुझे टाइम चाहिए. गॉट इट? सो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट. तो पेरेंट, रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज क्लियर, आई सपोज, टू एवरीवन. Yes, sir. Why this conflict is happening? So we have around 30 plus participants. Can I have a yes or no from everyone on this? The reason of conflict is clear. Yes, sir. Lovely. Thank you so much. Now, अब solution क्या है? Reason तो पता चल गया मेरे को conflict है ना? What is the solution? I request other participants to please keep themselves on a mute ताकि हम session को बड़ा smoothly कर पाए. Reason is clear to everyone. Now let's move on to the next part. Yes, overcome generation gap. Yes, Nasreen, कैसे करना है इस generation gap को over? ये आगे विशाल सर and कृति मैम will talk. अब बात आती है कि पहले जो career options थे वो बहुत कम थे. मैं आपसे एक बात करता हूँ. In the present era, the influencers, the YouTubers, the freelancers, the social work, and I can name n number. ये करियर 10 साल पहले एग्जिस्ट करते थे क्या? बताइए. नहीं करते थे, राइट? नो. अच्छा, आप लोग अभी कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. हाँ जी. Give me a second, मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ. And then you can unmute yourself. Okay, I'll unmute you. Okay, done. Okay, done. So ये करियर्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, ठीक. नाउ आई विल से 5 years डाउन द लाइन जब आप अपना करियर बनाने जाएंगे तो कुछ जो प्रेजेंट करियर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे. सम न्यू करियर विल एग्जिस्ट जिनका मुझे कुछ पता नहीं है अभी. कैन वी प्रेडिक्ट 7 years डाउन द लाइन कौन सा करियर डोमिनेटिंग होगा? कैन एनीवन प्रेडिक्ट राइट नाउ? Yes, we can do freelancing in graphic designing. मैं आऊंगा, विकृति मैम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे. I cannot predict one. जो अर्लियर करियर्स थे, जो हमारे ट्रेडिशनल करियर्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं पूरे तरीके से. लेट मी टेल यू वन थिंग. So I have a friend of mine, मेरे साथ है. He's a doctor and he's a cardiac surgeon. At 45, he's struggling to start his own practice. ठीक. तो even the engineers, the bankers से अगर मैं बात करता हूँ, liberal arts in demand, we will talk. Naveen, right. Don't worry. Kriti ma'am will talk about these parameters. Okay. So now we'll move on to Kriti ma'am. She will discuss with you all कि कौन से करियर हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या और ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं. एंड आफ्टर दैट विशाल सर will discuss how to choose the career which I want. Research, right? So that's all from my end. So now we are aware that why the conflict is there. Now Kriti ma'am and Vishal sir will take how to resolve this conflict. Right? Over to you, Kriti ma'am. Thank you, Nitin sir. I think बहुत सही आपने ओपनिंग करी. that ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रहता है. that what to choose. and काफी मैं रिस्पॉन्सेस पढ़ रही थी. बच्चों ने लिखा कि
पेरेंट्स को पता नहीं होता, जनरेशन गैप होता है, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो मैं just very quickly first 2 minutes I would like to spend on कि ये conflict होता क्यों है, you know, where are these new careers coming from and why are the parents not aware about these careers, ऐसा where is this knowledge gap happening. So I'm just trying to focus on right now on the evolution of careers and see that careers कैसे prosper करते हैं और बढ़ते कैसे हैं. ऐसा क्यों होता है कि जब हम as parents, you know, I mean, we are all 1980s, 70s, 60s born वाले parents हैं. उस टाइम पे इंडिया वाज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी एंड हमारे पास परचेसिंग पावर नहीं थी. सो आवर कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स वर नॉट वेरी हाई क्योंकि पैसा नहीं था एक एवरेज इंडियन के पास. बट अगर आप आज की तारीख में देखिए, ये मैंने एक स्टेटिस्टिक्स उठाई है इंटरनेट से, इंडिया इज projected to be growing at the fastest rate in terms of consumer market spending. इसका मतलब एक एवरेज इंडियन के पास पैसा है हाथ में स्पेंड करने के लिए. और जब स्पेंड करने के लिए पैसा होता है तो क्या होता है, हम अपनी लाइफ को नेसेसिटीज से ज्यादा ईज पे ध्यान देने लगते हैं. जब पैसा कम है तो ऑब्वियसली वी विल बी ओनली स्पेंडिंग ऑन थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर अस. तो फूड, living, basic expenses, clothing is what we will be looking at. Whereas when we have more money, we will be looking at entertainment, we will be looking at ease of doing things, and that is where these new careers come in. Because now people are willing to spend money, and that's why there are businesses and offerings to offer in that gap. So मैं एक बहुत ही simple सा एक example लेती हूँ. यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे इस सेशन में, आई एम श्योर दे विल अग्री कि ग्रोइंग अप इन 1980s हमारे जो एड्स होते थे वो मेनली कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट के एड्स होते थे. सर्फ ले लीजिए, खाना साबुन ले लीजिए, ग्लूकोज, पीवी, अमूल. These were the ads that we saw growing up. Today's generation is seeing very different ads on TV. There is WhatsApp, there is mutual fund, there is Cred, there is Byju's, there is Urban Company, there is Flipkart. We are no longer talking about sabun and biscuit. You know, we're talking about services. We're talking about ease of reaching out to you. So the whole industry has shifted, and when the industry shifts, there has to be an evolution of new careers, which we did not see in our time, because hamare time pe we were a not so rich country. Today I will not say that we are an extremely rich country, but yes, we are a prospering nation, and an average Indian is having more purchasing power than we used to have when we were growing up. Now एक simple economics का model है जिसमें कि हमने economics में ये पढ़ा है कि जब हमें पैसा बनाना होता है तो ये 5 M's of management हम यूज करते हैं. Men मतलब की resources, men, women, money, method, machines and material. इन 5 चीजों को यूज करके पैसा क्रिएट करा जाता था, या I would say we could reach out to more and more people. हम सबने पढ़ा कि कैसे हेनरी फोर्ड ने एक मशीनरी की लाइन क्रिएट करी जिससे एक साथ बहुत सारी कार्स बनती चली गई, because he used a particular method and machines, right? Today, the power of internet has kind of replicated all of these very easily. इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से जो हेनरी फोर्ड करना चाह रहे थे वो अब घर बैठे एक लैपटॉप के साथ कर सकते हैं. So internet has opened up the options to reach out to more and more people and make yourself accessible to more and more people much easier. And that is why the whole industry, the way we do business, the way we see careers has completely changed. So now इस backdrop को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हम कैसे हमारा करियर का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हमारे करियर्स क्यों चेंज हुए हैं. क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, और जब पैसा आता है तो हम उसको खर्च डिफरेंट डायरेक्शंस में करना चाहते हैं. पहले हम एक बार रेस्टोरेंट जाते थे और खाना खाते थे, आज खाना हमारे घर पे आ जाता है जब हमको चाहिए. तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है जिस तरीके से हम आप सोचते हैं एज पेरेंट्स एंड जो बच्चे सोचते हैं. सो नाउ आई टॉक अबाउट द 21st सेंचुरी करियर्स. कौन से ऐसे करियर्स हैं जो ग्रोइंग अप हमने एज पेरेंट्स नहीं देखे, बट आज की तारीख में
जो ये यूथ है, जो ये बच्चे हैं, ये इन करियर्स को बहुत ही आम रूप में देख रहे हैं. सो देयर इज गेमिंग एंड गेम डेवलपमेंट, व्हिच इज गेम डिजाइन एंड गेम डेवलपमेंट. एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर अभी बहुत तेजी से करियर्स आ रहे हैं. इसके ऊपर हमने शायद एज ए जनरेशन कभी बात नहीं करी होगी, बट जिस रेट पे हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, सो लाइक यू वुड हैव सीन कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन. ऑयल खत्म हो रहा है, तो हमारे लिए ग्रोइंग अप ऑयल वाज द बिगेस्ट source of energy, but now oil being a finite resource, it's finishing. So we have to look at bringing in more and more energy solutions to run the world. Digital marketing, hospitality management, computer science के अंदर भी specializations आ गई हैं, जैसे कि data science, machine learning, artificial intelligence, ethical hacking, app development. ये सब नाम शायद हमने growing up नहीं सुने थे. Social media management, another very popular career these days. Almost हर छोटे से छोटे बिजनेस को, बड़े से बड़े बिजनेस को सोशल मीडिया मैनेजर्स चाहिए. यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स who are doing exceedingly well. Bioinformatics, बायो जो बच्चा लेता है हिंदुस्तान में, हम ये मान के चल लेते हैं कि वो डॉक्टर ही बनेगा. But in my experience, and I'm sure Nitin ji will agree and Vishal ji will agree that there are so many kids who love bio as a subject but don't want to become doctors. Bioinformatics is a great career for them to be in, जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे प्रिडिक्शंस होती है. अभी गूगल जैसी कंपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे कमाल का काम कर रही है, and in our lifetime only we will see how this career will become an exceedingly great career, because बहुत सारे AI टूल्स से ये प्रिडिक्शन होने लगेगी कि हमें अगले 5 साल में 10 साल में कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये सारा काम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ हो रहा है. फिल्म मेकिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, ये बहुत तेजी से लास्ट 5-6 साल में मैंने देखा है कि बहुत बच्चे इन करियर्स में जाने लग गए हैं. एंड दिस इज ऑल्सो बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट. बिकॉज पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, फिल्म मेकिंग का मतलब था बॉलीवुड जाना या टॉलीवुड जाना, एंड ऑब्वियसली देयर वर लिमिटेड रोल्स देयर. बट आज की तारीख में अगर आप देखें, हम जितना भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, there is somebody who's trying to tell you a story through a video, and hence there are small films being made every day by businesses, by professionals, by YouTubers, by influencers, and so many other people. And hence we need filmmakers and scriptwriters and storytellers for all of these businesses. So ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है. It is moved away only from being in Bollywood or Tollywood to being in even in every small city, जहां पर any business house is trying to tell a story and talk about what the business is. Psychologist, इस करियर के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते थे इंडिया में, but अभी this career has gained a lot of momentum in India. Sports analyst, I have few students जो sports में बहुत interested होते हैं, and obviously we all understand that sports में career बनाना, to become a sports person is exceedingly difficult. But sports analyst, sports physiotherapy, sports psychology, ये कुछ इतने amazing career sports की field में निकल कर आए हैं, जहाँ बच्चा एक अच्छा lifestyle रख रहा है, they are earning well, and they are also aligned and in the industry that they are interested in. So जो बच्चे extremely sports में interested होते हैं, वो इस तरीके के careers को आराम से choose कर सकते हैं with a good potential of growth and earning money as well. Public policy making, ये एक ऐसा करियर था जिसको हम खाली IAS और UPSC एग्जाम से जोड़ते थे as our generation. But today there are a lot of corporate and consulting organizations which have joined hands with the government. जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है in helping them make more effective public policy. So जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में अगर किसी को पब्लिक पॉलिसी में जाना है तो उसको UPSC का एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा. वो कॉर्पोरेट्स और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अनदर करियर व्हिच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम. जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, हम ये सोचते थे कि समाज सेवा खाली फ्री में हो सकती है, पर आज की तारीख में
कुछ लोगों ने अमेजिंग बिजनेसेस क्रिएट करे हैं इस सेगमेंट में, जो समाज सेवा के साथ साथ सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेसेस बने हैं, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड टू रन देयर ओन हाउसहोल्ड। एडटेक एंटरप्रेन्योरशिप, हम हमारे चारों तरफ एडटेक प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड। ग्राफिक डिजाइन, किसी एक बच्चे ने मेंशन भी करा था दैट वी कैन बिकम a freelancer in graphic design. Yes, you can become a freelancer. You can work full time in graphic design. You can work with a digital marketing company in graphic design. Product design, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट। इंडिया में पहले लग्जरी ब्रांड्स वही नहीं करती थी, मॉल्स ही नहीं होते थे जब वी एज जो आज के दौर के पेरेंट्स है, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। बट टुडे व्हेन वी लुक अराउंड, ऑलमोस्ट एवरी सिटी हैज मॉल्स। Big cities have luxury and high-end brands, so they need people to run these businesses. Again, ये segment, ये retail segment, mall segment, luxury business segment बहुत कम पेरेंट्स को समझ में आता है, क्योंकि this did not exist when we were growing up. But आज ये segment है, बहुत बड़ा segment है और बहुत बड़ी तादाद पे hiring कर रहा है from low level to the senior most level. My own very good friend is working with some amazing luxury brands, and they get to travel the world. They get very good perks and discounts in buying those products. They got very good salaries. So एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है विद इन द मार्केटिंग रिटेल सेगमेंट। मेकअप आर्टिस्ट, इमेज कंसल्टिंग एंड पीआर कंसल्टिंग, ये सब वो करियर्स हैं जो हमने टिपिकली, जो पेरेंट्स 1970s, 80s, 60s, 19s बेसिकली 20वीं सदी में जो पैदा हुए पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये करियर्स नहीं देखे होंगे। बट these careers are the ones which are shaping new ways today, and with the advent of internet, ये careers का रूप बदलता जा रहा है, and they are becoming very very successful. Are there any questions on any of these careers? Let's try to ask as many questions as you want, because उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ कुछ जो पुराने careers हैं उसके ऊपर. So if any child has any questions, आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. So Namrata is saying she's dropped a question in the chat box. Okay, let me just try to see what the question is. Sustainable energy, IT sector, affiliate marketing. I feel that new age careers are problems. Yes. So how to convince your parents for these careers, Namrata, and that is the reason of doing these kind of sessions. That देखिए नितिन जी ने जो बात बोली, कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा सही तरीके से पैसे कमा ले और अपनी जिंदगी अपने आप बिता सके. So if your parents are able to get convinced that these careers have opportunities, have growth potential, and इन careers में पैसा है, आपको आगे चल के किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल मानेंगे. एंड दैट इज द रीजन कि हम इन करियर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कि ये करियर्स वो करियर्स हैं जो शायद हमने एज पेरेंट्स नहीं देखे हैं पर आज की तारीख में हैं. प्लीज एक्सप्लेन अगेन साइकोलॉजी करियर ऑप्शंस. ओके, सो आई विल कम टू पूनम्स क्वेश्चन फर्स्ट. So psychology में आज की तारीख में बहुत सारे career options, and we have two leading psychologists sitting in the panel. Nitin and Vishal are already psychologists in themselves. So नितिन जी या विशाल जी, आप इसके ऊपर कोई बात करना चाहेंगे या you want me to respond? Okay, I am unmuting both of you. Right. So instead of theory, I'll just share my experience being a psychologist. Okay. I will not get into the work aspect of it. We'll get how much I charge. Let me tell you one thing. So I charge 10,000 rupees for a mentorship program. Okay. So, and it hardly takes 5 or 6 sessions, and that's to online, not in person.
That is one area where I work. Second, the workshops which we organize on a different thing, there the participation fees per participant ranges from 2,000 to 5,000 rupees. And I'm a complete freelancer. Okay. And talking about those who will be starting early, the psychology teacher, Vishal sir will talk, Vishal will share his experience because he's teaching psychology. I'm more into the practical aspect of it. The salary starts from somewhere 35 to 40,000 rupees. One. I just read an article. And the options are innumerable. मतलब there are n number of आप therapist बनिए, उस पे करिए, वो options हैं. I just read an article few days back, and it talks about that mental health issues in future will be more dangerous and than the COVID in itself. So when it comes to the financial aspect of it, don't worry if anybody is thinking of that. I have left a well-established career as a trainer and shifted here at the age of 39. Okay, one. And so I hope I answered that question. Vishal will add more from the teaching point of view. How in just 1 year his channel has grown only by teaching psychology, that Vishal will talk. Kriti, I have a question here which you can later on address it. And that's a question. And he also making a career in an unconventional field. So parents, तो पुराने करियर जो थे वहाँ फाइनेंशियल स्टेबल था, पता था सैलरी मेरे को नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता. And that stability, I think we have paid a very bigger cost to that stability. But in the present careers, the financial is not that stable. कि आज हो सकता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कल खराब भी हो सकता है. तो प्लीज कैन यू उस पे अगर आप मुझे कुछ इनपुट्स दे पाएं तो. Within first part of the question को प्लीज थोड़ा सा दोबारा रिपीट करिए. आप म्यूट हो गए थे. आप अगेन म्यूट हो गए. Sir, you are on mute. चाहते थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सरकारी नौकरी मिल गई है मेरे को, नौकरी से कोई नहीं निकालेगा. So you're talking about financial stability in the सरकारी बैंक में मैं चला गया हूँ, अब मुझे नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता. ठीक. बट द न्यू एज करियर्स जो हैं, इस पे वो लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है. मैं खुद फ्रीलांसर हूं तो मुझे पता है वो चीजें. तो एट टाइम्स we get a very good deal and we are earning in lakhs in the month. We may not earn a single penny as well. And I think you also have the similar background, correct? So how to address that? Will it always remain the part, or there are ways to address it? I think that becomes a very बहुत major concern हो जाता है parents का. I agree, and ये बहुत ही valid question है, Nitin. Thank you for raising this question. Definitely government jobs में stability है, but government jobs आज वो नहीं रही है जो पहले थी, जहां आपने अगर आपकी जॉब लग गई तो आप रिटायर होकर ही निकलेंगे और आपको बीच में कोई नहीं निकालेगा. A lot of government departments have become professional, and I see that people get warnings, people get demoted. नौकरी से जल्दी आज भी बहुत जल्दी नहीं निकाला जाता है. आपको बहुत ही खराब काम करना पड़ेगा तभी आपको निकाला जाएगा, वरना जल्दी से नहीं निकाला जाता है. लेकिन हाँ, आपको वार्निंग्स मिलती है, आपको डिमोशन मिलता है आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब्स में. सो स्टेबिलिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में है, बट राइज बहुत ज्यादा नहीं है. आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही रहते हैं. आप जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उतने ही सेगमेंट में ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी निकाल देंगे. Whereas if you are a private practitioner, चाहे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी I would say it is upon your skill, आपकी स्किल पे, आपके पैशन पे और आपकी हंगर पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करने के लिए तैयार है, और जितना काम आप करने के लिए तैयार है आपको उस हिसाब से पैसा मिल सकता है. So today sky is the limit. एक जमाना था जब हम बड़े हो रहे थे तो जॉब से पैसा नहीं हुआ करता था. फ्रीलांसिंग तो ऑप्शन था ही नहीं, वो ऐसा कोई नाम का ऑप्शन तो हुआ ही नहीं करता था, और जॉब्स में बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी.
इसीलिए हमें ये लगता था कि प्राइवेट जॉब तो करना बेकार है, गवर्नमेंट जॉब में कम से कम एक स्टेबिलिटी है। बट आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब्स में मैं एक डिफरेंस बोलूंगी कि एक तरफ जहां गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, पे स्केल्स एक 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 लेवल पे जाके स्टे हो जाएंगे, whereas प्राइवेट जॉब्स में शायद उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यस यू कैन बी हायर्ड एंड फायर्ड, बट एट द सेम टाइम पे स्केल्स का कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आप को कहीं तक भी कितनी भी सैलरी तक अपने काम को लेकर जा सकते हैं। सो ये एक फाइन डिफरेंस है। और प्राइवेट जॉब्स में भी इवन इफ यू आर फायर्ड, गॉड फॉरबिड, आपको दूसरी कंपनी ले लेगी अगर आपका काम अच्छा है। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे जितने जानने वाले कॉर्पोरेट जॉब्स में काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो 1 या 2 महीने से ज्यादा खाली बैठता हो बिटवीन द जॉब्स। कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, क्योंकि जॉब मार्केट बूमिंग है इंडिया में। अभी मैंने आपको दिखाया ग्राफ कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट। तो जब इतनी तेजी से 140 करोड़ इंडियन कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेस को, तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी। आई होप नितिन जी दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Today, yes, yeah. Got it. Thank you so much. That's a very practical and the fact-based answer. Thanks a lot. Thank you. So moving on to my next segment of changing face of the existing careers. जो careers हम parents ने बचपन से देखे हैं, कैसे वो careers change हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर्स के साथ रोबोटिक सर्जरीज हो रही है। So many hospitals have started hiring robotic surgeons. रोबोटिक आर्म है जो पूरी सर्जरी कंप्लीट कर रहा है, तो वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, रोबोट कर रहा है। अभी जैसे कि मैंने बताया, गूगल एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लेकर, जहां पर जैसे हमको अगर बेसिक सर्दी खांसी जुकाम होता है, बुखार आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे हमें ये है, और डॉक्टर कुछ बेसिक हमारे टेस्ट करके बताता है कि आपको शायद वायरल हुआ होगा, आपको शायद कोविड हुआ होगा, आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है। ये सारे टेस्ट एआई कर लेगा अगले 10 सालों के अंदर। आपको एक बेसिक डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल बहुत तेजी से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो डॉक्टर वाला प्रोफेशन का पूरा फेस चेंज हो रहा है। किस तरीके से हम उनको देखते थे और किस तरीके से आगे उस फील्ड में काम होगा, इज चेंजिंग कंप्लीटली। अकाउंटेंसी, सीए अगेन एक बहुत ही स्टेडी करियर हम मानते हैं। मेरी अभी एक बहुत ही लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हो रही थी, एंड ही सेड कि आज की तारीख में इतनी ऑटोमेटेड अकाउंटेंसी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें हमारा कोई काम ही नहीं है। अगर बिजनेस हाउस उस प्लेटफॉर्म को यूज करे और अपने सारे रिसिप्ट एक्सपेंसेस उस प्लेटफॉर्म में डाल दे, तो ऑडिटेड रिपोर्ट सीधा डाउनलोड करने की जरूरत है और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमें तो डर है कि कहीं सीए एज अ प्रोफेशन ऑब्सोलीट ना हो जाए, क्योंकि इतनी तेजी से उसमें ऑटोमेशन आ रहा है। टीचिंग को हमने बदलते देखा है कोविड में सबसे तेजी से। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो इंटरनेट को यूज करना नहीं जानते थे, लैपटॉप यूज करना नहीं जानते थे, डूडलिंग जैसा शब्द नहीं जानते थे, और आज की तारीख में आई थिंक हिंदुस्तान का हर टीचर ऑनलाइन प्रोफिशिएंट हो चुका है। सो ऑनलाइन टीचिंग हैज चेंज्ड द फेस ऑफ टीचिंग इन इंडिया। मार्केटिंग, जो हम देखते थे होर्डिंग्स लगते थे शहर में, अखबार में एड जाता था, पैम्फलेट्स इंस्टीट्यूशन के बाहर खड़े होकर बंटवाए जाते थे, मार्केटिंग का पूरा रूप बदल गया है। इट हैज मूव्ड फ्रॉम द ऑन ग्राउंड मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। शॉपिंग, हम जब बड़े हो रहे थे एज पेरेंट्स, तो हम धूप वाले मार्केट में जाते थे जहां अलग अलग दुकानें होती थी, और एक एक दुकान में एंटर करते थे और शॉपिंग करके आते थे। उसके बाद आए मॉल्स, जहां पे आनी शुरू हुई रिटेल शॉपिंग, हमने मॉल्स जाना शुरू करा। और आज की तारीख में आई थिंक अ लॉट ऑफ अस विल अग्री कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, हम घर बैठे उन ब्रांड्स तक पे शॉपिंग करते हैं जो ब्रांड्स हमारे शहर में नहीं मिल रही है। सो the whole marketing behind these brands आज जिस तरीके से एक लाइफस्टाइल, एक पैंटलून, एक ज़ारा आप तक पहुंचना चाह रहा है,
उसको पहुंचने का तरीका पूरा बदल गया है। रेस्टोरेंट्स वर्सेस क्लाउड किचन। क्लाउड किचन जैसा शब्द हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं पर हमारे पास जगह नहीं है। आज की तारीख में मैं इतने सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं है एक पूरा रेस्टोरेंट रन करने का, क्योंकि एक रेस्टोरेंट रन करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, बट दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग। तो वो अपने घर से ही किचन चला रहे हैं और जोमैटो, स्विगी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पूरे शहर भर को खाना खिला रहे हैं, जिसमें कि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कुकिंग एज अ स्किल की जरूरत है। सो ये कुछ मैंने वो एग्जांपल्स लिए जहां पे इमर्जिंग ट्रेंड्स की वजह से टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम सालों से जिन करियर्स को देखते आ रहे थे उन करियर्स के चेहरे बदल गए हैं। एंड इस वजह से मैं अपने पूरे सेशन को इस स्लाइड में कल्मिनेट करना चाहती हूँ। आपको कुछ भी इस सेशन से याद रहे ना रहे, आई फील ये कुछ वर्ड्स जो मैंने इस स्लाइड में रखे हैं इनको जरूर आप याद रखिएगा। फॉर योर जनरेशन टू सक्सीड, और मैं ये सारे बच्चों को बोल रही हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, these are the most important skills that you will require to succeed in the 21st century. और ये मैंने नहीं कहा है, अगर आप गूगल करें तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू सक्सीड इन 21st सेंचुरी आप गूगल पे रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डेटा। कम्युनिकेशन, आज आप चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे लॉयर है, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में है, चाहे आप इवन एक ऐसे करियर में है बैंकिंग या फाइनेंस जिसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन स्टिल विल रिमेन द की फॉर यू टू सक्सीड, क्योंकि आज की तारीख में बिजनेसेस इंटरडिसिप्लिनरी होते जा रहे हैं। तो एक बच्चे ने कहीं लिबरल आर्ट्स के बारे में बात करी थी। लिबरल आर्ट्स मैं बताना चाहूंगी क्या है, क्योंकि ये चैट में कहीं आया था। लिबरल आर्ट्स होता है जहां हम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कर रहे हैं, एक फाइनेंस वाला और एक आर्ट वाला मिलकर पढ़ाई कर रहा है। सो अगर मेरे को इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डिजाइन, आई कैन स्टडी दैट, बिकॉज आज की तारीख में जितने भी बिजनेस सोल्यूशंस बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, गूगल मैप हम सब ने यूज किया हुआ है, मुझे नहीं लगता इस वेबिनार में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने गूगल मैप नहीं यूज करा होगा। So can the students here put on the chat box कि गूगल मैप जैसे एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस तरीके के एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, किस तरीके के फील्ड सब्जेक्ट डोमेन वाले लोग साथ में मिलकर आएंगे गूगल मैप को बनाने के लिए। इंजीनियर्स, दैट इज राइट, प्रोग्रामर, ओके, कंप्यूटर साइंस, ओके, coding, okay, so all of you are talking about engineering, coding, very good, geography, data science, okay. Okay, so let me just bring in some perspective. Google Map जैसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डेफिनेटली कोडर्स एंड प्रोग्रामर्स की जरूरत होगी। आपने बिल्कुल सही बोला, पीपल हु आर एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी, जिनको हम कार्टोग्राफर्स बोलते थे पहले एक जमाने में, उनकी जरूरत होगी। सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होगी बिकॉज दे अंडरस्टैंड द टेरेन बेटर। वी विल नीड रिमोट सेंसिंग people who can communicate with the satellites, उनकी जरूरत होगी। We will need designers who can design the solution and the look of the software. So we will need people from so many different backgrounds to come together एक गूगल मैप बनाने के लिए। और ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि आज की तारीख में हर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी बहुत सारे आर्ट्स और कॉमर्स के फील्ड के लोगों को साथ में लेकर आ रहा है ताकि उन सॉल्यूशंस को मार्केट तक लाया जा सके। और जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो कॉमर्स के लोग मिलकर उसको मार्केट में सस्टेनेबल तरीके से बेचेंगे। तो लिबरल आर्ट्स इसीलिए शब्द वहां से निकल कर आया, और कम्युनिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड के लोगों के साथ बातें करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्लियर। क्रिएटिविटी, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में है हम उनसे ज्यादा क्या नया कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे।
कोलैबोरेशन अगेन, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट तरीके के टीम्स के साथ काम करने वाले हैं. क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक जो प्रॉब्लम होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको डेफिनेटली जिन पे काम करना पड़ेगा अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं 21st सेंचुरी में. और अगर आप इन स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप चाहे न्यू एज 21st सेंचुरी करियर्स में है या आप स्टेबलाइज पुराने करियर्स में है, you will be able to succeed in what you're doing. And with this, I request now Vishal sir to talk about the next segment for today, which is कि अगर हमने ये समझ लिया कि अच्छा ये करियर्स है, पर इन करियर्स में हम हमको जाना कैसे है, कैसे सिलेक्ट करें हम कि इनमें से कौन सा करियर हमारे लिए सही है, तो उसके ऊपर विशाल सर बात करेंगे. सर मैं अपने स्लाइड शो बंद कर रही हूँ एंड over to you. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. So yes, there are a lot of things that we have discussed right now, and it was the sessions like this where a lot of interaction happens, the learning happens. Vishal sir, Right. एक minute, let me just pin you. आप Yeah, देखिए, you're not visible. Right. So is it fine? Perfect. Please go ahead. Yeah. So a session where a lot of interaction happens, that's where learning happens. And this is, I agree to this particular point. And I know there are a lot of questions that you have asked. The very first question that we'll start with, that being a psychologist and working as a psychology teacher to approximately like 15 lakh students, I guess, the unique visitors in our channel. And what I understand is someone has asked about careers in psychology. The very basic line I would like to summarize with: anything, any space or every space where a person needs to connect with another person, or a person needs to connect with a technology. In both the fronts, psychology comes into picture. In any field, irrespective of the field, irrespective of things, if a person is going to connect with another person, if an organization is going to connect with other persons, or if a person is going to connect with the technology, or a person want technology to be connected through people, in all those fronts, yes, psychology can come into a picture. Psychology can be a beautiful thing. You don't know why you are addicted to a certain games, or why you are addicted to certain, let's say, Instagram reels, or why you are addicted to certain things. There are people who have designed it such a way so that it can take your addiction, right? It can take your time. And we have already read in most of the places, if someone is offering you something in free, they're actually charging your time for it, right? And who is charging this? There are people who understand human brain. There are people who understand how you're going to behave or react through these things, right? So yes, with commerce, with accounts, with engineering, with science, with liberal arts, with technology, every space psychology can come handy. Whether you are trying to create a career in psychology or you don't want to create a career in psychology, in both the fronts, psychology comes in a picture, right? So it's a life skill, it's not a subject. Okay. Second, someone has, Nitin sir has asked about कि यार मेरे जो पेरेंट्स थे ना, उनके साथ था कि वो गवर्नमेंट जॉब एक बार लग जाए, उसके बाद जीवन में कोई दिक्कतें खत्म हो जाएंगी सारी. So what I say always is that these are two different concepts. One concept is growth and another concept is stability. And these are inversely proportional. So जितने भी mathematics वाले student होंगे, they can understand what inversely proportional means. So inversely proportional मतलब कि एक पे अगर आप काम करोगे तो दूसरा छूटेगा या कम होगा. तो अगर आपको stability चाहिए तो आपको growth के साथ compromise करना पड़ेगा, आपकी growth stable हो जाएगी. अगर आपको growth चाहिए तो आपको stability के साथ compromise करना पड़ेगा. ठीक है. Third is, again, someone has asked कि अगर इतनी rapidly changes हो रहे हैं जीवन में या careers में या चीजों में, so what can I do specifically to adjust to do those changes in terms of my career?
सो हमने ये सुना कि यार 5 साल पहले जो करियर थे अब वैसे नहीं है, आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद जो करियर होंगे उसके आज हमें पता नहीं है कि कौन सी चीजें होंगी। जो हमारे पेरेंट्स ने जो देखा था, जो जो चेंजेस 1990s से लेकर 2010 20 साल में जितने चेंजेस हुए थे उससे ज्यादा चेंजेस पिछले 5 सालों में हमने देख लिया। ठीक है, सो अगर आपको इस रैपिड चेंज के साथ, if you want to adjust to that rapid change, I'll summarize it by one line: make yourself a brand, make yourself non-replaceable. ये कैसे होगा? If you know what you're doing and if you can be a master of it. So master of one and jack of everything else is what is the requirement of right now. पहले होता था ना कि you need to be master of one and jack of none, या jack of all and master of none. अब ऐसा नहीं है। अब you need to be a master of one thing and you need to be jack of everything else that can comprise of that can help you to collaborate with that mastery. Right? Someone again said कि as a human being, Aditya, that's a completely different story. We'll try to create a different webinar on this. Is it necessary to have a degree? So to just give us basic summary, Google, Facebook, entrepreneurship, these things do not need a degree. डिग्री वहां पर जरूरी होती है जहां पर कंपटीशन बहुत हाई होता है, राइट? जहां पर आपको आपकी डिग्री से ही वैल्यू दिया जाता है, आपके स्किल्स से वैल्यू नहीं दिया जाता, वहां पर डिग्री इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ डिग्री अगर आपके पास है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। इफ यू आर स्किल्ड, if you know what you're trying to do, if you know exactly things, in those situations, yes, degree is not important. Okay? Someone said कि as a human being, what we also want is an instant success. कि हम क्या करें कि हमको जल्दी success मिल जाए. So there is a line from Warren Buffett that everyone wants to be wealthy, but no one wants to wait. Okay? So if you don't have that patience, if you don't know that you need to drill yourself daily for 15 hours, just daily 15 hours at least, and that too for let's say 2 to 3 years continuously, and then you'll start seeing a difference, then you'll start seeing a result, right? It's all like a bodybuilding exercises. ठीक है, तो पहले दिन जाकर अगर आपने जिम में अपने आप को फ्लेक्स करा, थोड़े से एक्सरसाइज करती थी, ओके नाउ आई एम गेटिंग द मसल, आपका वो मोटिवेशन पहले दिन खत्म हो जाएगा। If you know कि okay, to get that muscle which I require, it will take around 2 to 3 years of continuous practices. That's where your career will also the career decisions और career आप किस तरीके से बनाते हो, किस तरीके से समझते हो, वो चीज वहां पर बहुत important होती है, right? So now, why many startups failed? Again, this is a long part, because what I understand in this particular point is why startups fail is just because of one thing, that they want to do certain things in a much pacer way. जो 20 साल का काम वो सोच रहे हैं कि हम कैसे उसको 1 साल में कर लें, ठीक है? मार्केट डिस्टर्ब कैसे करते हैं, we are here to disrupt the market, we are here to bang on, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, without the proper base. So it is like that you are trying to build a Burj Khalifa, right? But you don't have that particular base to support that. तो बेस बनाने, जैसे एक स्पीच में राहुल द्रविड़ said कि you need to grill yourself for initially few years, and that's where you can. So palm tree का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि palm tree पहले 5 सालों में सिर्फ 3 या 4 फीट की हाइट उसकी होती है, और उसके बाद 1 साल के अंदर इट गोज टू लाइक 20-30 मीटर्स के आसपास. सो इनिशियली 5 years दैट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स. सो वो अपने रूट्स को इनहेंस करता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है कि मैं 5 साल बाद जब मैं 30 फीट की हाइट का होऊंगा, और उस समय अगर मेरे पास कोई तूफान आएगा या कोई चीजें होंगी इस तरीके की, सो मेरे रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उसको सपोर्ट. So initially 5 years it goes down. Similarly, initial years जो आपकी एज पीरियड है अभी क्लास ऑलमोस्ट सारे 17-18 साल के हैं, up to age 23, 24, 25, you need to go downwards.
You need to build your base. You need to strengthen what you know. You need to strengthen your skills. And if you are doing that, there will be time, there will be opportunity, there will be people who will be getting along, and that those people will take you to the another extreme level. But आपको मजबूत होना पड़ेगा. For example, I consider Ishan Kishan as one of a good example, right? So Ishan Kishan got an opportunity to perform in IPL, and then suddenly he got into the Indian team. Or Umran Malik. But there are a lot of sleepless nights, there are a lot of sweats behind when they were actually building it downwards, right? So, and only engineering startup successful? No, that's not the case, Srishti. Everywhere, everything, जहां पर भी हम बिना बेस बनाए वे बुर्ज खलीफा बनाने की कोशिश करेंगे, that will demolish every time. ठीक है? So now the question comes कि हम इस पे काम करें कैसे, हमें पता कैसे करें, हम रिसर्च कैसे करें. ठीक है? सो रिसर्च बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें दो चीजें हैं. पहले आपको अपनी स्किल समझनी है. आपको ये समझना है कि व्हाट यू आर गुड एट, एंड आई एम श्योर कि लाइक 90% पीपल माइट नॉट नो कि व्हाट दे आर गुड एट, राइट? सो दैट्स वेयर यू कैन एक्चुअली टेक अ हेल्प ऑफ समवन who knows how things work, who knows what are the processes, who have designed the process and things like that. ठीक है? If you can find out a mentor who can guide you along, who can let you understand what you are good at, who can let you understand your skills, your aptitude, your personality, your behavior, your academics, your affordability, all these things. So वो आपका काम कर देगा. दूसरा, आपको रिसर्च इस बात पे नहीं करनी है कि कौन सा करियर अच्छा है. सर मुझे बता दीजिए कि मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा है. फंडामेंटल क्वेश्चंस आ रहा हो. तो आप जब जिससे भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, खासकर आप सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन को लेकर, कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स अच्छा है, द फंडामेंटल रॉन्ग क्वेश्चन. एवरीथिंग इज गुड. ठीक है? आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल. Even there are multi-million-dollar organization who have started that business from picking up a garbage. कचरा उठाने से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था. How to choose a good mentor? I'll ask Nitin sir at the end of the session to answer this. So उन्होंने कचरा उठाने से बिजनेस स्टार्ट किया था, and they have created a multi-million-dollar business out of it. So when कचरा उठाना can be a career, कचरा उठाने में भी अगर इतनी स्कोप हो सकती है, so स्कोप तो हर जगह है, हर एक डिग्री में स्कोप. The only thing is, are you trying to create or make yourself a brand out from that? That's two different things, academics and skill. So academic always acts as a support. ठीक है? academics can always act as a support. दो टाइप के करियर होते हैं, एक academic oriented होता है और एक skill oriented होता है. आपके लिए क्या चीजें ज्यादा बेटर हैं, ये आपको समझ के हम डिजाइन कर पाएंगे कि whether you are good in academic type of career or you are good in a skill type of career, or we can collaborate academic and skill for you. ठीक है? So there are careers जहां पर academic और skill को add किया जा सकता है. It can also based on aptitude. We don't know which I will be the best. Yes. So aptitude is obviously कि मुझे कौन सी चीजें easily समझ में आती है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट easily समझ में आ जाता है बिना एफर्ट डाले. हर सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो साइंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, सोशल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, मोरल साइंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, कॉमर्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक. सो सब्जेक्ट आल्सो हैज अ कैरेक्टरिस्टिक. जैसे इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि ये लंबा है, गोरा है, काला है, सुंदर है, बदसूरत है, मोटा है, दुबला है, जैसे हर व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें और भी है हालांकि, सिमिलरली हर सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो अगर आपको ये पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इजीली समझ में आ रहा है, तो आप ये समझ पाओगे कि आपका एप्टीट्यूड क्या है. उस कैरेक्टरिस्टिक को आप अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिलाओगे. उसके बाद अगर आप ये समझ पाओगे कि कितने तरीके के ऐसे करियर ऑप्शन है जहां पर उन करियर्स में वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस जॉब प्रोफाइल में वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड इफ यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा, या तो आपको बहुत हाई रिसर्च चाहिए होगी. इफ यू कैन डू दैट, ब्यूटीफुल, दैट्स योर आंसर. सो कनेक्टिंग दोस existing characteristics to the required characteristic is all about, it's all about right decision making.
तो मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए जिसकी बेसिक उस पे ये चीजें होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए। अगर आपको ये पता है तभी आप डिफाइन कर पाओगे कि आपको 20,000 का फोन चाहिए या 1.5 लाख का। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको किन फीचर्स की जरूरत है और आपने 1.5 लाख का फोन ले लिया कि यार ये तो बहुत अच्छा होगा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपने वहां पर कहीं ना कहीं तो गलती कर दी है। आपकी रिक्वायरमेंट 15,000 के फोन में, 20,000 के फोन में भी हो सकती थी, बट आपने, ठीक है, तो फिर आप अपने आप को दिलासा देते रह जाते हैं। ओके, we'll try to answer this. Parents says hobbies never become career. Is it true? Do a research. Find out at least 10 people who have converted their hobby to something extraordinary. For example, if you follow Ashish Chanchalani, 2 days back he said उसने एक Instagram post डाला and it says कि thank you for being with me for last 8 years. You are the guys who have created एक ऐसे इंजीनियर को जिसकी कोई लाइफ में गोल नहीं थी to a enthusiast content creator. How he has started, that was not the ability, that was not an academic, that was just he started with a hobby. He started with okay, this is what I'm starting to like it. Same goes with Bhuvan Bam. Same goes with a lot of same goes with, let's say, the Ritesh Agarwal, the Oyo founder, right? Same goes with Flipkart founder Bansal brothers, right? So until and unless you start exploring things, you will not find कि आपके लिए क्या अच्छी है। जितनी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका उसमें एप्टीट्यूड है। So if you do this, if you try to understand this, if you do a basic research, आपको पेरेंट को बताना है कि हॉबीज में करियर है या नहीं है। Find out 10 people who do have created a career out of their hobby. Present that in front of your parents and उस चीज को कनेक्ट करो कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। जो सर ने बोला कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। How what you are trying to do fulfills that particular objective of your parent. If you can prove this, there is nothing that will stop you. The problem here is we always assume कि कोई और हमें बता दे. That's where problem comes, right? So if you want to research, so this very first thing, explore. The more you will explore, the more you will try to understand कि okay, ये मुझे पसंद आ रहा है या मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैंने एक्सप्लोर किया गिटार सीखना, मुझे 1 महीने 2 महीने मैंने सीखने की कोशिश की, मुझे ट्यूनिंग नहीं समझ में आती, मुझे समझ ही नहीं आता था ये म्यूजिक क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो मुझे पता चल गया कि मेरी म्यूजिकल एबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं ये सोचूं अपने आप को कि नहीं मुझे तो करना ही है, बट मेरे वो स्किल काम ही नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही चीजें, और मैं अपने आप को संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखकर मोटिवेट करता रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवे, राइट? मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आता, लेट्स से कि एक फार्म हाउस पिज्जा और दूसरे स्टफ्ड पिज्जा के बीच में डिफरेंस, और मैंने अपने आप को सोच लिया कि यार मुझे ना कुक बनना है, मुझे फ्लेवर का टेस्ट ही डिफरेंस करना नहीं आता, या मुझे समझ ही नहीं आता, राइट? तो ये कब होगा? जब आप एक्सप्लोर करो। द ओनली रिसर्च methodology which I will recommend right now to all of you is try to do anything and everything that fascinates you. Do that. Plus अगर आपको आपके पेरेंट्स का जो डिसोसिएशन होता है वो आप लॉजिकली जब तक चीजें सामने प्रेजेंट नहीं करोगे यू वोंट फाइंड आंसर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड हाउ यू आंसर यू आर गोइंग टू गिव टू देम, हाउ दैट इज एक्चुअली फुलफिलिंग दैट ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज बेसिक ऑफ एनी कम्युनिकेशन इन लाइफ। तो आप जिससे भी बात करने जा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी हेल्प कैसे हो सकती है। इफ यू कैन गिव दोज आंसर, डन। सेल्स में हम यही सीखते हैं कि यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट, यू सेल अ सॉल्यूशन। सो इफ यू नो हाउ टू सेल अ सॉल्यूशन, दैट्स इट, डन। उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। टू डू योर रिसर्च, यू ऑलवेज either you can research and
ऑब्वियसली बात है, रिसर्च करने से पहले आपके पास वो क्वेश्चन होना चाहिए कि आप रिसर्च क्या करना चाहते हो, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन फाइंड अ गुड मेंटोर. ट्राई टू फाइंड अ न्यूट्रल मेंटोर. Don't go to a mentor who is teaching something. कोई अगर JEE की तैयारी करा रहा है या CA की तैयारी करा रहा है और आप उसके पास जा रहे हो कि मुझे मेंटर चाहिए, वो बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ बता पाएगा CA के प्लस माइनस व्हाटएवर इट इज. Try to find a neutral mentor. Parents say that like singing, dancing, and so many people in our country, so success chances are very less. Every street they are present. I agree. Ask them, how many engineers have you seen who do have a degree and don't have a job or a work? Tell me, as sir said rightly, there is a doctor of 10 to 15 years of experience and he is finding it difficult. He is not getting a job of even 80,000 rupees a month. What is stable? We have interviewed one of the IPS officer. I'm not going to name him, but we have interviewed one of the IPS officer. We had a talk with him and he said, here sometimes I think I should have gone for a startup. There are people who जो मेरे बैच से थे, they have done a startup and they are doing brilliant. And what I'm doing here is only I'm earning like 1.5 to 2 lakh rupees a month. And there are people who have not got selected in UPSC and they're doing like crores of revenues in a year. Right. So there is no career as such which gives you an assurity of success. The only thing which can give you an assurity of success is when you make yourself a brand, when you make yourself non-replaceable. And if you are able to do that, back. Always there will be people who will come finding you to work for them. किसने किसने 3 Idiots का वो डायलॉग सुना है? I know सबने सुना है, सबने एक्सपीरियंस किया है, but we have not actually worked it out. क्या था वो डायलॉग? If someone can unmute and say. So they will not be able to unmute. I've blocked the Achha, okay. permission. They So can write it on the chat. Yeah, if someone can write on the chat box. What was that? Something like excellence or something like excellence के पीछे, remember. सक्सेस से रिलेटेड था कुछ. ओके. एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, ऐसा कुछ था. इफ यू रिमेंबर समवन, राइट? किसको ये याद है? आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन. ये सीन किसको याद है? So the dialogue was कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो. Absolutely, yes. कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे है. Yes. किसको ये याद है? पैसे कम होंगे पर मैं खुश रहूंगा. So we see things but we don't relate it to our real life. Right? So try to find out that passion जहां पर सिर्फ पैसा ही एक ऑब्जेक्टिव आपका ना है. अगर सिर्फ पैसा आपका ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, so you can go for a stable career, you can go for a government job, you can go for something which is not very dynamic, which is very stable. But अगर आपका गोल कुछ बड़ा है, so always go for developing your skill, always go for something which you can make yourself a brand. Right. So with this, I'll end my session, and I'll ask Nitin sir. Sir, can you answer this question where someone said how to find a good mentor? Okay. Thank you, Vishal sir. Thank you, Kriti ma'am, and thank you every participant.
थोड़ा सा फिलोसफिकल आंसर दूंगा इसका, ठीक है, बट वही है जवाब। ठीक, सो मुझे जो भी मेंटर मिले, आई हैव, मैं एक चीज बोलता हूँ, प्यासे को कुएं की तलाश नहीं है, सिर्फ प्यासे को कुएं की तलाश नहीं है, कुएं को भी प्यासे की तलाश है। तो आपकी जो इच्छा है ना सीखने की, रेज इट टू अ लेवल एंड यू विल फाइंड अ मेंटर। फिलोसफिकल लगेगा बट मेरा एक्सपीरियंस यही है, कोई एक्सेल कोई एल्गोरिथम आपको मेंटर ढूंढ के नहीं देगा। ठीक, जब आप इस प्यास को बढ़ाएंगे, कीप वर्किंग, एंड दैट मेंटर डजंट मीन कि आपको कोई एक जिंदा इंसान ही मिलेगा। A book can be your mentor. A session like this can be your mentor. A small video can be a mentor. Some write-up can be a mentor. Some movie can be a mentor. तो पहले अपनी मेंटर की जो पैरामीटर्स हैं उस पर काम करो। ठीक, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। और अगर किसी को मिल जाएगी कोई एल्गोरिथम मेंटर ढूंढ के दे रहा है, प्लीज मेरे को आगे बता देना। राइट, सो मैं विशाल को मेंटर कर रहा हूँ, विशाल मुझे कुछ चीजों पे मेंटर कर रहा है, और हम लोग एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, पता ही नहीं था उस एस्पेक्ट के बारे में। कुछ इंसिडेंट्स हुआ एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सेम इज विद मी एंड कृति, राइट कृति? और आज हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं साथ में। Absolutely, I totally agree. दैट्स हाउ। तो याद रखो, कुएं को भी प्यासे की तलाश है, बस आप अपनी प्यास बढ़ाते रहो, यू विल गेट द मेंटर। वन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। कुछ चीजें मैं बोलूंगा बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन। कुछ मिथ्स हैं करियर प्लानिंग को लेके, क्योंकि मैंने बोला शुरू से मैं साइकोलॉजी और इमोशनल वाले पार्ट पे ज्यादा बात करूंगा, दैट्स माय डोमेन इज। कुछ मिथ्स हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बताएगा मुझे करियर में क्या करना है। आपके माँ बाप बताएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड बताएगी, मेरा बॉयफ्रेंड बताएगा, मेरे टीचर बताएंगे, मेरा काउंसलर बताएगा। बीइंग अ काउंसलर आई एम टेलिंग यू दिस, हम नहीं बताते किसी को कि तुम्हें करियर में क्या करना है, ये मिथ है। कोई साइकोमेट्रिक असेसमेंट बताएगा कि मुझे करियर में क्या करना है, नो, इट्स अ जर्नी। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, व्हाट विशाल टॉक्ड अबाउट, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन पे जाना पड़ेगा। हमारे टाइम पे एक्सप्लोर करने के लिए हमको उस काम को करके देखना पड़ता था, बट विद दी इन द प्रेजेंट एरा आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ शैडो इंटर्नशिप कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपको बताएंगे कि मेरे लिए है या नहीं, राइट? एंड In fact, Nitin sir, that gives me हाँ। an idea. We can do another session to tell students कि research कैसे करी जा सकती है, एग्जैक्टली we'll have a कैसे detailed session समझे on that. अपनी स्किल्स को, अपने एरियाज को कैसे समझे, किस तरीके से एक्सप्लोर करें। क्योंकि आज काफी मैंने क्वेश्चंस देखे, ये थे कि हमें एक्सप्लोर कैसे करूं, मैं समझूं कैसे। तो Next session will be completely on that. बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक बहुत सारे तरीके हैं आज की तारीख में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के पास भी एक्सप्लोर करने के। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग। No Aditya, internet is a help, it is not the best place. वहां से क्या खोज के लाना ये सीखना पड़ेगा। And बहुत बड़ा to समझ all रहे the हो? students, I will tell you, Google is just an algorithm. आप हाँ, जिस हाँ। तरीके से सवाल पूछेंगे ना, आपको जवाब उसी तरीके से मिलेगा। तो प्लीज, गूगल बहुत बड़ा हेल्प है, जैसे कि नितिन सर ने बोला, पर खाली आंख बंद करके गूगल पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि आपके सवाल के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। Exactly. So we will have a next session on this. एक और चीज बोलता हूँ और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप। आपको इसका जवाब हाँ, यस और नो में देना है, राइट? प्यास लगती है तो पता चलता है, से यस और नो। पता चलता है, राइट? भूख लगती है तो पता चलता है, प्यार होता है तो पता चलता है, दिल टूटता है तो पता चलता है, करेक्ट? सिमिलरली करियर में क्या करना है ये खुद के अंदर से आएगा। मैं उसका एग्जांपल हूँ, विशाल उसका एग्जांपल है, कृति मैम उसका एग्जांपल है। कृति वाज वर्किंग समवेयर इन द कॉर्पोरेट फॉर सम टाइम, आई वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, विशाल वाज वर्किंग कंप्लीटली इन अ डिफरेंट फील्ड। और जितने भी लोगों को हमने देखा जो एक्चुअली वो चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे, उनको समय रहते अंदर से ही आया।
सेशंस लाइक दिस, जो नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं, सेशन इज डिसाइडेड, कैसे एक्सप्लोर करना, वो मोमेंट पे पहुंचना जरूरी है, राइट? One, thank you very much everyone. Please be a part of this WhatsApp group. Don't leave the group. As said in the start, we are not selling anything, we are not marketing anything. ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ करना है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कंटेंट है, वहां आ सकते हो, ठीक है? राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेशन की डेट probably it will be the first Sunday of every month. That is what we have decided. कुछ चेंजेस होंगे, आपको अपडेट्स आते रहेंगे. बी अ पार्ट, डोंट लीव द व्हाट्सएप ग्रुप. उस पे और कोई कंटेंट नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, राइट? That's all. Thank you so much and hope the session was helpful to everyone. Not hope, I am 100% confident कि अगर 22 लोग 1 घंटे तक रुके हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प हुई है, राइट? Spread the word, help your friends also, ताकि उनका भी जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैसला सही हो. Thank you so much everyone. All the best. See you for the next session. And if any questions are left, the WhatsApp group is open, or you can WhatsApp में तो अभी हमने admin rights कर दिए हैं, आप मुझे विशाल या कृति मैम को डायरेक्टली WhatsApp कर सकते हैं with your questions. We will be more than happy to answer those questions. Thank you and bye bye. Have a wonderful Sunday everyone. Bye bye. Thank you Aditya.